Hello students, myself Nishi Goyal, an economics tutor. In the series of national income, today we are going to discuss about the methods of calculating national income. There are three methods of calculating national income and we should discuss it by one. These three methods are: number one, product method, or we can say it value added method. Number two, income method. Number three, expenditure method. These methods are methods of calculating national income, and we should get a aggregate, that is, we can say gross value added at MP or NDP at FC or GDP at MP. We get one aggregate and then we reach to national income by doing adjustments that I have told you in my first video of national income, adjustments regarding depreciation, taxes, etc. In today's video, we should discuss in detail the product method or its other name that is important for you for 1 mark question, that is industrial origin method or net output method. There are two names of this method: industrial origin method, net output method. So please do keep it in mind. There are four names of this method: product method, value added method, industrial origin method and net output method. So here I cover your 1 mark question under this. Now let's start with the product method. To calculate product method, there are two approaches. The first approach is final output approach and the second approach is value added approach. By final output approach, we calculate gross value added at MP, and by value added approach, we get value added by each and every production enterprise and we get gross value added at MP. Now, I would like to tell you that what product method is. Product method is the method of calculating national income in terms of value addition by each and every production enterprise in an economy in an accounting year. Now, let's start in detail the product method. अपना नाम ही ये बता रहा है कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड का मतलब क्या है। सारी जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें जितना भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है उन सब की अगर हम वैल्यू को ऐड कर दें तो हम उस तरीके से भी नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसके मैंने आपको बताया कि 3 मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। हम कहीं से भी स्टार्ट करें, एंड में हम एक फिगर, एक एग्रीगेट पे पहुंचेंगे जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है प्रोडक्ट मेथड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल अप्रोच है एक, तो फाइनल अप्रोच पे जब हम जाते हैं, फाइनल वैल्यू अप्रोच, उससे जो हमें होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड जो हमें मिलती है मार्केट प्राइस पे, वो हमें कैसे मिलती है? हमें उसमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है मार्केट प्राइस पे। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट मतलब कि जितना भी हमारा एक अकाउंटिंग ईयर में आउटपुट हुआ है वो लेके उसमें से हमें जो है माइनस कर देनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। So, make it clear, gross value added at MP should be equal to gross value output. The meaning of this is gross value of output
minus intermediate consumption. You will get gross value added at MP. और अगर हम स्टार्ट करें वैल्यू एडिड अप्रोच से, तो हम डायरेक्टली इसमें जो है वैल्यूज, सारी जितनी भी अपनी एंटरप्राइजेस है उनकी हम वैल्यूज ऐड करेंगे, ग्रॉस वैल्यूज एट एमपी ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस, और उसमें से जो हमें करना है वो एडजस्टमेंट हमारी रहती है कि उसमें से हमें कुछ चीजें माइनस करनी होती है, वो मैं आपको डिटेल में आगे समझाती हूं। जो ये वैल्यू एडिड मेथड है ज्यादातर हम यही फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूं। इसके नंबर वाइज स्टेप्स पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने लेनी है ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस। तो उसमें जो हमारी होती है प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हमारी कौन सी हैं? तो प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस जैसे हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 इज सेकेंडरी सेक्टर एंड नंबर 3 इज टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वो लोग कवर होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, फिशरीज वगैरह आ गई, तो ऐसी जो चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर में रहती हैं। सेकंड हमारा मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेक्टर, उसमें सारी इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें कुछ भी नया कुछ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ भी नया हम क्रिएट करते हैं। द थर्ड वन इज टेरिशरी सेक्टर। थर्ड वन में हमारा टेरिशरी सेक्टर आ जाता है जिसमें हम सर्विसेज लेते हैं, जो सर्विसेज हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस वगैरह वाले प्रोवाइड करते हैं। उन सबकी इनकम्स को हम इस तरह से तीनों को ले लेते हैं। तो पूरी हमें सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें मैंने आपको बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर आ गया। सेकेंड जो है हमारा स्टेप इसमें हमने लेना है वो है हम इन तीनों को ऐड करके जो हमारा हो जाएगा वो हम एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, एक फिगर पे, जिससे हमारा आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, और उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी भी कह सकते हैं। मतलब इसकी जब हम तीनों की ऐड करेंगे इनकम, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी एट एमपी और ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी। तो उसमें ही एडजस्टमेंट करके हम आगे पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम तक। और इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स का हो गया। कई बार हमें से देखो, अब कैलकुलेट तो हमें जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो जैसे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेल्स ले ली, जैसे हमें सेल्स गिवन है और उसमें जो है जितनी भी चेंजेस इन स्टॉक हुई हैं उसको ऐड कर दिया। चेंजेस इन स्टॉक ये कैसे निकालना है? ये निकालना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड। अगर हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन है कि सेल्स गिवन है और हमें स्टॉक्स गिवन है, जैसे अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कौन सा स्टॉक है और अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में कौन सा स्टॉक था, तो हम उनको आपस में से क्लोजिंग में से माइनस करके ओपनिंग को हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। इसको जो है ऐड करके हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी। और जो इसके बाद हमें है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी आ गया। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास अगर इन दोनों में से, मतलब दोनों सेम ही हैं, इनमें से कुछ भी गिवन है तो हम नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है। हमें नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी। अब यहां से यहां तक हमें कैसे पहुंचना है ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें देखो, ये ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्रॉस से हमें जाना है नेट वैल्यू एडिड एट एमपी पे। वो हम कैसे जाएंगे?
नेट वैल्यू एडिट पे जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पर आपको डेप्रिसिएशन दे रही हूं मैं, डेप्रिसिएशन की जगह पे कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए, क्रॉस वैल्यू एडिट से हमें जाना है नेट वैल्यू एडिट पे सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन डिडक्ट की। डेप्रिसिएशन का जो अदर नेम है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं आपको बार बार ये बता रही हूं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन की जगह पे हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है तो हम इजीली उसको उसमें से माइनस करके वी शुड गेट नेट वैल्यू एड एमपी। अब नेक्स्ट स्टेप, नेट वैल्यू एडिड एट एमपी आ गया हमारे पास। तो अब हमें जाना जो है वो हमें जाना है एनएनपी एट एफसी तक। और ये जो नेट वैल्यू है इसको हम एनडीपी एट एमपी भी कह सकते हैं, मगर हमें जाना है एनएनपी तक। तो सबसे पहले अब हम एनडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे एनएनपी एट एमपी। तो देखिए हम कितने पास पहुंच गए अपने रिजल्ट के। एनएनपी एट एमपी करने के लिए हमें क्या करना है, एनडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया। इसमें से हमें देखिए सिर्फ ये डी और एन का डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें इसमें ऐड कर देनी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या किया है, एनएनपी एट एमपी पे पहुंचने के लिए एनडीपी एट एमपी में हमने ऐड कर दी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है हमें एनएनपी एफसी तक पहुंचने के लिए, और वो है टैक्सेस की। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम यहां से यहां आ गए, मतलब हम आ गए एनएनपी एट एमपी पे, मगर हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे। तो उसके लिए हमें करना है एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये लीजिए आपका रिजल्ट आपके सामने है। हमें मिल गया एनएनपी एट एफसी एंड दैट इज अवर नेशनल इनकम। है ना सिंपल, कितने इजीली हमने ये निकाल लिया कि हम एनएनपी एट एफसी पे पहुंच गए। मगर मेथड तो देखिए बहुत सिंपल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। उन प्रिकॉशंस को आप ध्यान से देखिए। सॉरी, तो मैं वो प्रिकॉशंस मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। प्रिकॉशंस जो हमें लेनी है कि कहीं भी हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि हमने कुछ 2 बार ऐड कर दिया, कुछ ऐड होने से रह गया। तो इस वजह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन प्रिकॉशंस को जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वैल्यू को और बिल्कुल एग्जैक्ट आप निकाल पाओगे। तो वो प्रिकॉशंस क्या है कि जो भी हमने सबसे पहली है, जो भी हमने वैल्यू लेनी है वो हमें लेनी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। मैंने आपको अपनी सेकेंड वीडियो में बताया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इनके साथ कई बार बच्चे इंटरमीडिएट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि एंड यूज कैसी है, उसकी एंड यूज कैसे हो रही है प्रोडक्ट की। तो हमें ये वैल्यू जो लेनी है हमें वो सिर्फ फाइनल गुड्स की लेनी है। फाइनल गुड्स की जब लेनी है तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और डबल काउंटिंग नहीं होगी। सेकंड जो हमारी प्रिकॉशन है कि अगर हमने कोई ऐसी बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं जो हमारी अपनी है और हम उसका रेंट खुद को तो नहीं देंगे, मगर अगर हम वही बिल्डिंग बाहर से लेते तो हमें उसका रेंट देना पड़ता। तो इस वजह
वजह से उसका इम्प्यूटेड रेंट हमने इसमें लेना है। ये वो आइटम्स हैं जो हमने इंक्लूड करनी है लेते समय, इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये वो आइटम्स हैं, इंप्यूटेड रेंट हो गया। और इसी तरीके से बिल्कुल इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये क्या है? ये है कि कई बार जैसे हमें पता है कि हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसकी हमें खुद को भी जरूरत है यूज करने के लिए, तो वो जितनी चीज हमने खुद के लिए यूज करी उसकी वैल्यू भी हम ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वही चीज हम मार्केट से लेते तो तब भी तो हमें उसके पेमेंट करनी पड़ती। तो इस वजह से हमें इसकी जो इंप्यूटेड वैल्यू है, जैसे कि एक फार्मर है, वो अपने खेत में कनक उगा रहा है, तो आपको पता ही है कि घर में भी कनक हमें वीट फ्लोर है जो हमें चपाती बनाने के लिए यूज करना होता है। तो जितना वीट उसने अपने घर पे यूज किया है तो उसकी वैल्यू भी ऐड करेंगे। ऐसे ही एक कोई कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो उसमें से जितनी भी कार, कोई भी कार हमने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रखी है तो उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि कोई भी चीज जो हम खुद ही बना रहे हैं और उसमें से कुछ हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू भी हम ऐड करेंगे। नंबर 4, फिक्स्ड एसेट्स, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस। यहां पर फिर आ गया इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो कैसे कि हमारा कुछ भी सेल्फ ओन्ड कोई चीज है, जैसे कार ही ले लीजिए कि हमारी अपनी पर्सनल कार हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा पर्सनल कार या कोई हमारा टेम्पो हो सकता है, तो हम उसको उस टेम्पो से अपना जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कैरेज का काम ले रहे हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को हम उस टेम्पो को यूज कर रहे हैं। तो अगर यही टेम्पो हम बाहर से हायर करते तो उसकी हमें जो प्राइस देनी पड़ती तो वो वैल्यू भी हमें यहां पर लेनी है, इसकी इंप्यूटेड वैल्यू। और इसके लिए और एक और रह गया बस, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। कोई हमें ऐसी सर्विसेज जो हमें बाहर से मिल रही हैं मगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, जैसे कोई वाटर सप्लाई का हो सकता है, कोई ऐसी सर्विसेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है कि अगर आपका ये प्रोड्यूसिंग यूनिट है तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। किसी भी तरह की फैसिलिटी हो सकती है, जैसे रोड्स बना दी उन्होंने, तो हमें पहले जब हमने यूनिट लगाया तो वहां पर रोड्स नहीं थी, मगर हमारे यूनिट लगते लगते वहां पर रोड्स बन गई। तो अगर हमें वो खुद से वो रोड बनानी पड़ती तो हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते उसके लिए, तो उस चीज की भी इंप्यूटेड वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारा कुछ मिला के हम जो वैल्यूज, ये प्रिकॉशंस अगर ध्यान में रखेंगे और इन चीजों को इंक्लूड करेंगे तो हम बिल्कुल नेट पे पहुंच जाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें ध्यान रखना है कि हमें इंक्लूड नहीं करनी। वो क्या है? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड। वो क्या है? सबसे पहले है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। मान लीजिए कोई ऐसे बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं कि हम कोई सेकेंड हैंड चीजें लेते हैं और उन्हें आगे सेल कर देते हैं, तो उसकी हमें वो सेल प्राइस हमें नहीं ऐड करनी है, क्योंकि वो जब न्यू सेल हुई होंगी तब उनकी वैल्यू हो चुकी है। इसका सिर्फ हमें इसके ऊपर जो कोई ब्रोकरेज या कमीशन हमें मिला है हम वो लेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंट इनकम सिर्फ वो है। नंबर 2 पे है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स।
कंपनी के होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम उनको सेल या परचेज कर रहे हैं तो उनका प्राइस भी हमें यहां नहीं लेना, बिकॉज दे आर मियर पेपर क्लेम्स। उनसे कोई भी ऐसे ओनरशिप चेंज नहीं होती, हमने सिर्फ उन्हें अपने शेयर्स दिए हैं जिसका हम उन्हें टाइम पे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसका भी हमें क्या लेना है, ब्रोकरेज एंड कमीशन ही इसमें ऐड होता है। तीसरा हमें क्या लेना है, इसमें नहीं लेना है जो, वो है इनकम अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जिसमें क्या आ जाएगा, कोई गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ऐसे किसी भी सोर्स से अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमें वो नहीं लेनी है। चौथा आ जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कुछ भी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जो हमें उस प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है मगर हम उसके फाइनल यूजर नहीं हैं, तो उसमें हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इससे अगर हम इसको ले लेंगे तो उससे हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो नेक्स्ट नहीं लेनी है वो है services provided for self consumption। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। जैसे हम घर पे अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं, उसके लिए जो भी बना रहे हैं, तो उसके लिए उसकी क्या वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी मार्केट प्राइस हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो उसकी हमें सर्विसेज की कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी। ऐसे ही हमने कोई घर पे छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है जिसमें हम खुद पे ही काम करके अपने फैमिली के लिए ही उसमें हम थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स हमें मिल रही हैं, तो उनकी भी कोई भी वैल्यू हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही हमने करा हुआ है। तो इस वजह से अगर हम ये चीजें नहीं लेते, इनको माइनस, मतलब ये हमें नहीं लेनी है, जो मैंने आपको पहले बताई वो हमें लेनी है, तो इससे हमें जो फिगर मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड तक हम पहुंच जाएंगे। अब यहां पर मैंने आपको एक वर्ड अभी भी बताया कि डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूं कि आप उस डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर मैं आपको लिख रही हूं प्रोड्यूसर, कि हमें क्या उससे प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट, उससे हमें क्या मिल रहा है, और उसके बाद आ जाएगा उसकी जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, फिर आ जाएगा उसमें इंटरमीडिएट हमने कितना यूज किया, और एंड में हमारे निकलेगी वैल्यू एडेड। अब एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि सबसे हमारा पहले प्रोड्यूसर है, मान लीजिए फार्मर, उससे हमें वीट मिली जिसकी वैल्यू उसने टोटल ली, मार्केट में सेल की, तो 2000 रुपीज उसे नेट मिला, तो उसकी इंटरमीडिएट हमने अभी कुछ भी नहीं ले रहे, तो नेट वैल्यू एडेड उसकी 2000 ही हो गई। और नंबर 2 पे ये वीट एक फ्लोर मिल वाले ने परचेज की, फ्लोर मिल वाले ने उसका फ्लोर बनाया जिसको उसने सेल किया 2500 में। अब इंटरमीडिएट उसमें कितने आए, 2000, जितने की उसकी वेट आई थी, और अब जाके उसको वैल्यू उसने सिर्फ उसमें जो ऐड की 500 की। नंबर 3, अब यही फ्लोर एक बेकर ने लिया जिससे उसने ब्रेड बनाया, और उस ब्रेड को उसने टोटल 3600 में सेल किया, और उसका जो वैल्यू एडिशन उसमें उसने इंटरमीडिएट यूज किया था वो 2500 था, और जो वैल्यू एडिशन उसकी तरफ से हुई वो 1100 की हुई।
रुपीज 1100 की। और यही ब्रेड जो है वो कन्फेक्शनली सेल करने के लिए, कन्फेक्शनली सेल करने के लिए ब्रेड, तो उसने वो ब्रेड्स 4000 में सेल कर दी। 4000 में सेल करी तो उसने जो वैल्यू उसमें इंटरमीडिएट की थी 3600 और उसने जो अपना प्रॉफिट शेयर उसने रखा 400 का रखा। अब आप ध्यान से देखिए, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। इसको जैसे मैंने ऐड किया तो ये बन गया 12,100 और ये बना हमारा 8,100 और ये जो हमारा बना 4,000। मीन्स इन दोनों का टोटल ये बन रहा है। अगर हम इस वे से इनको ले लें कि सारा का सारा ऐसे वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेंगे तो हमारी फिगर देखिए कहां जा रही है, मगर जबकि नेट वैल्यू ऐड हुई है 4,000। तो नेशनल इनकम में हमें वैल्यू एडिड लेनी होती है, ना कि हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट लेनी है, क्योंकि जब इसने सेल किया तो इसकी फार्मर की आ गई, इसने किया तो इसकी आ जाएगी, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर हम सबका वीट, क्योंकि सब में देखिए 2000 की वीट सब में आ गई, तो 4 टाइम्स हमने वीट को यहां पर ले लिया, तो इस वजह से ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें हमेशा वैल्यू एडिट्स की तरफ से ही चलना है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू एडिड मेथड जो है हमारा प्रोडक्ट मेथड कैसे निकलता है, तो हमें इससे एक एग्रीगेट मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिड, और उससे हम नेशनल इनकम की तरफ पहुंचते हैं। नेशनल इनकम की तरफ पहुंचते हैं तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम 1 बाय 1 करके इनको करेंगे। सेकेंड वीडियो में मैं अपने इनकम मेथड आपको बताऊंगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, कमेंट अपॉन इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और अगर आप मेरे पीछे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे रही हूं, आप उनको भी एक बार फॉलो अप कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग ऑल।